Hello dear students, you all are welcome in the E-class of Sanskrit. Students, today in our class we will study lesson number 12, that is Subhashit Saptakam, means a bunch of 7 good sayings. Students, Subhashit means epigrams, or you can say good sayings. In Sanskrit, there are many features of the epigrams. One is that these are small verses which are able to contain an ocean of wisdom in a small vessel. Our ancestors composed these epigrams based on the values and wisdoms. They are popular even today and without any discrimination show the path of living a happy and ideal life. Here in this chapter we shall learn 7 epigrams which are like precious gems of Sanskrit language, and whatever value we learn from them we shall try to imbibe in ourselves. Students, these 7 verses are very important for translation as well as expand the idea also. From these 7 verses, verse number 1 and 4 you have to learn by heart, because these 2 verses will be asked in examination for complete the following verses. So let's start chapter 12, Subhashit Saptakam. Verse number 1. शनेह पंथा शनेह कंथा शनेह पर्वत लंघनम शनेर विद्या शनेर वित्तम पंचेतानी शनेह शनेह. As I told you, you have to learn this verse by heart, so I repeat it once again. शनेह पंथा शनेह कंथा शनेह पर्वत लंघनम शनेर विद्या शनेर वित्तम पंचेतानी शने शने. The translation is: walk slowly along the road, use the patched garment slowly, cross the mountain slowly, learn slowly, earn slowly. These 5 things should be done slowly slowly. Students, यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा गया है कि हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण कार्य जैसे रास्ता पार करना, पर्वत पर चढ़ना, पैच्ड गारमेंट या क्विल्ट को यूज करना, धन कमाना और विद्या प्राप्त करना, इन सभी कामों को धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए काम हमेशा खराब होते हैं और धीरे धीरे कार्य करने से उन कार्यों की समझ हमें आती है. So we should learn all important work of our life slowly slowly. Verse number 2. शीलम शौर्यम अनालस्यम पांडित्यम मित्र संग्रह अचोहर ऋणियानी पंचेतान्य अक्षयो निधि. Translation is: Sheelam means good character, Shauryam bravery, Analasyam industriousness, Pandityam scholarship, Mitra Sangraha collection of good friends. These 5 are imperishable treasure that cannot be stolen by thieves. यहाँ हमें बताया गया है कि अगर आपका चरित्र अच्छा है, आपके अंदर बहादुरी है, आपके अंदर हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी है और आप किसी भी विषय की जानकारी रखते हैं और साथ ही साथ आपके पास अच्छे मित्रों का संग्रह है, तो ये आपका ऐसा खजाना माना जाता है जो ना तो कभी कम होता है और ना ही कभी कोई चोर इसे आपसे छीन सकता है या चुरा सकता है, और ये हमेशा और अधिक बढ़ता चला जाता है. वर्स नंबर 3. संहति श्रेयसी पुंसाम विगुणेष्वपि बंधुषु
तुषेरपि परिभ्रष्टा न प्ररोहन्ति तंदुला. Translation is, unity with even worthless relatives is beneficial. The rice grains separated from husk do not grow. यहाँ कवि हमें बताना चाहते हैं कि अपने सगे संबंधी, भाई बंध और मित्र, चाहे वो आपसे अलग सोच रखने वाले हों, चाहे उनकी बुद्धि बहुत अधिक कार्य ना करती हो, वो आपके लिए बहुत उपयोगी ना हो, तो भी उनसे आपको संबंध बनाए रखना चाहिए. उनके साथ आपकी यूनिटी होने से वो बेनिफिशियल होती है, क्योंकि अगर आप उनसे अलग हो जाते हैं तो आप कभी भी उस तरह प्रगति नहीं कर सकते जैसे एक चावल के दाने से उसका कवर या हस्क हटा देने पर वो कभी भी वापस से ग्रो नहीं कर सकता, फिर से उसे उगाया नहीं जा सकता. तो हमारे वर्थलेस रिलेटिव्स भी हमारे लिए, अगर उनसे हम यूनिटी रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो वह एक स्ट्रेंथ का काम करते हैं. वर्स नंबर 4. सत्यम तपो ज्ञानम अहिंसताम च विद्वत् प्रणामम च सुशीलताम च एतानि यो विद्धाति स विद्वान न हि एक पक्षो विहगा प्रयाति. Translation is, the one who accomplished truth, penance, knowledge, non-violence, salutation to the learned persons, and good moral character is a real scholar, because the bird having one wing cannot fly. This is very important verse for expand the idea. Students, यहाँ हमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप सच में विद्वान तब मानते हैं जब उसके अंदर कुछ गुण जैसे सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा और अन्य विद्वानों के प्रति प्रणाम का भाव या उनके प्रति सम्मान का भाव हो, और साथ ही साथ उसका खुद का कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, तभी वह एक सच्चा विद्वान कहलाता है. इनमें से कोई भी गुण कम होने पर आप उस व्यक्ति को विद्वान नहीं कह सकते. जैसे एक पंख ना होने पर कोई भी पंछी उड़ नहीं सकता, उसे उड़ने के लिए उसके सभी या दोनों पंखों की आवश्यकता होती है. Our verse number 6 is, काष्ठात् अग्नि जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्सानां न अस्ति असाध्यं नराणां मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति. Translation is, fire is produced from the wood when it rubbed with the other wood. The earth that is being dug gives water. Nothing is impossible for the enthusiastic man. All the efforts started in the right direction become fruitful. Students, another very important verse for expand the idea. यहाँ हमें बताया गया है कि कोई भी कार्य जब पूरी मेहनत और लगन के साथ सही दिशा में शुरू किया जाता है तो वह हमेशा फलदायी होता है और अच्छे ढंग से पूर्ण होता है. जैसे अगर लकड़ी के एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के साथ रब किया जाए, घिसा जाए, तो उससे अग्नि उत्पन्न की जा सकती है. और अगर भूमि को खोदा जाए तो वह हमें जल प्रदान करती है. यानी दुनिया में कोई भी काम असंभव या असाधारण नहीं होते हैं. अगर हम चाहें तो हर कार्य को अपनी मेहनत के बल पर संभव बना सकते हैं. Nothing is impossible for the enthusiastic person because राइट डायरेक्शन में किए गए सभी एफर्ट्स हमेशा
फ्रूटफुल होते हैं, फलदायी होते हैं और हमें जीवन में सफलता प्राप्त करवाते हैं। Our last and seventh verse is पात्रम न ताप्यति नैवं मलं प्रसूते स्नेहम न संहरति नैव गुणान् क्षिण्णोति द्रव्य अवसान समये चलताम न धत्ते सतपुत्र एष कुल सद्मानी को अपि दीपः। Translation is, a virtuous son is like a lamp in the house of dynasty. It does not heat the vessel, does not produce soot, does not finish oil of affection, does not diminish the wicks, and does not become unsteady at the time of the termination of wealth. Students, यहाँ पर एक सत्पुत्र यानी अच्छा पुत्र अपने परिवार, अपने कुल में किस प्रकार का होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके विषय में जानकारी दी गई है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि एक गुणवान पुत्र हमेशा ही अपने कुल, अपने खानदान या परिवार के लिए एक दीप के समान, दिए के समान होता है, जो कुछ ऐसे गुण रखता है जिससे वो सदैव प्रशंसा का पात्र होता है। जैसे वो कभी भी उस बर्तन को गर्म नहीं करता जिसमें वो दिया जल रहा है, और ना ही कभी उससे काला धुआं या कालिख निकलती है जो कि परिवार के नाम को खराब करती है। वो कभी भी परिवार के द्वारा जो स्नेह, अफेक्शन का ऑयल या अफेक्शन उसे दिया जाता है, उसे जल्दी से समाप्त नहीं करता, और ना ही उसकी जो विक्स है, जिसे आप वाट कहते हैं, उसे समाप्त कर देता है, उसे जलाकर राख कर देता है। और तो और ये जो सतपुत्र होता है, वो कभी भी अपने परिवार को जब आर्थिक तंगी होती है या धन की कमी होती है या किसी भी तरह की तकलीफ परिवार के ऊपर आती है, तो उसे छोड़कर चला नहीं जाता। ऐसा पुत्र सदैव सतपुत्र कहलाता है। Students, these are your 7 good sayings. You have to prepare their translation and expand the idea also. You have to learn verse number 1 and 4 by heart and write down your translation in your fair notebook. Thank you.